everyone. Hello everyone. Now we study high order thinking question based on projectile. Based on projectile, let's see two inclined planes OA and OB having inclination 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively intersect each other at point O. Two inclined surface plane OA and OB both are intersect each other at point O. Inclination from horizontal 30 degree and 60 degree. Okay. As shown in figure, a particle is projected from point P. A particle is projected from point P with a speed u. U is equal to 10 root meter per second. Okay. Along a direction perpendicular to plane OA. Direction of projection perpendicular to the plane OA. Okay. If the particle strikes plane OB perpendicular to the plane OB at point Q, okay, calculate time of flight, velocity with which the particle strike the plane OB, distance PQ, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है आपको PQ. ओके तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट्स सी ground surface, OA. Okay, projected and root meter per second. Strike the particle perpendicular to the plane OB at point perpendicular. तो हम डायरेक्शन चूज कर लेते हैं एक्स एंड वाई, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. ओके ओरिजिन. तो देखिए प्रोजेक्शन वेलोसिटी अलोंग्स टू डायरेक्शन, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन 10 रूट पर सेकेंड वेलोसिटी अलोंग्स टू वाई डायरेक्शन 0. भाई आप देखिए ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में तो कोई है नहीं, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा बेटा, दैट्स क्लियर. दिस एंगल 30 डिग्री, दिस एंगल. अब ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखिए आप, ग्रेविटी का डायरेक्शन ये होगा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो इसके कंपोनेंट्स हम फाइंड करेंगे. चलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अनदर कंपोनेंट ये होगा बेटा. तो आप 30 60 किसी भी एंगल का यूज कर सकते हैं. देखिए दिस लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर 30 एंगल, रिमेनिंग ये क्या हो गया बेटा 60, ये एंगल क्या हो गया आपका 30 डिग्री. तो दिस कंपोनेंट cos 30, दिस कंपोनेंट sin 30. तो एक्सेलरेशन अलोंग्स टू एक्स डायरेक्शन e cos 30 from frame of reference x direction O to B, e cos 30 opposite to the x direction, apply the negative sign. From question take g 10 meter per second square, minus 10 cos 30 root 3 by 2, minus 5 root 3 meter per second square. Alongs to y direction
sin 30, देखो g sin 30 opposite to the y direction, apply the negative sign, equal to 10 sin 30 1/2 minus 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बेटा, particle projected from point P with speed velocity 10√3 meter per second and strike at point Q normally to the plane OB. First time of flight. So at point Q, x component of final velocity 0, x component of final velocity 0. Apply the first equation of motion, v equal to u plus 8, taking alongs to x direction, so vx equal to ux plus ax t. Final velocity 0 at point Q alongs to x direction, ux 10√3, t acceleration minus 5√3 to t, so t is equal to 10√3 upon 5√2 second. Your first answer, time of flight 2 seconds. Okay, velocity with which the particle strike the plane OB. आपको वो वेलोसिटी फाइंड कर रहा है पर पार्टिकल, वेलोसिटी फाइंड करना है पर पार्टिकल पॉइंट क्यू पर स्ट्राइक करेगा। तो देखिए यहाँ एक्स कंपोनेंट तो 0 हो गया बेटा, तो हमें फाइनली दिस डायरेक्शन अपोजिट टू द वाई, तो वाई डायरेक्शन के लिए हम फाइंड करेंगे पार्ट बी, y इक्वल टू y प्लस ए वाई, तो वी वाई 0, ए वाई माइनस 5 इंटू 2, तो वी वाई इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन मीन्स particle strike at point Q normally to the plane of OB. Strike direction opposite to the y direction with velocity minus 10 meter per second. Minus means opposite to the y direction. तो particle point Q पर plane OB पर normally strike करेगा और किस velocity से strike करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। पार्ट सी में देखिए बेटा, आपको डिस्टेंस PQ फाइंड करना है, डिस्टेंस PQ फाइंड करना है। तो डिस्टेंस PQ फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट इनिशियली OP एंड OQ फाइंड करने पड़ेंगे पहले। उसके लिए आप देखिए ट्राइंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ ये 90 का एंगल हो गया बेटा। तो PQ क्या हो गया? हाइपोटेनियस बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PQ इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ PQ आपको इनिशियली OP एंड OQ फाइंड करना होगा। दैट्स क्लियर। तो देखिए, और ये H भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है H भी फाइंड किया जा सकता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस? दैट्स क्लियर। तो सभी फाइंड कर देते हैं। देखिए पहले OP फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? OP डिस्प्लेसमेंट अलोंग्स टू y डायरेक्शन, PO डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अपोजिट टू द y डायरेक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल along y डायरेक्शन, क्या होगा बेटा? PO। ओके, तो S इक्वल टू प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो PO इक्वल टू YT प्लस हाफ YT स्क्वायर। तो PO इक्वल टू Y तो 0 है आपका, Y क्या है बेटा? -5 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 4 आ गया माइनस। अब मॉड फॉर्म में लें अपन OP इक्वल टू 10 मीटर। दैट्स क्लियर। OP इक्वल टू 10 मीटर। अब ये हाइट आप फाइंड करना चाहें, दिस हाइट H,
तो sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 परपेंडिकुलर, h हाइपोटेन्यूज का हो गया आपका OP, implies that h इक्वल टू sin 30, OP क्या है भैया 10 sin 30 1/2, हाइट क्या आ गया आपका 5 मीटर। ओके, हालांकि क्वेश्चन ने फाइंड नहीं करवाया लेकिन अपन ने फाइंड करके बता दिया। अब आपको PQ फाइंड करने के लिए OP तो आपने फाइंड कर लिया, OQ क्या है अलोंग्स टू x डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग्स टू x डायरेक्शन आप देख सकते हैं अलोंग्स टू x डायरेक्शन, s इक्वल टू 2xt प्लस हाफ xt स्क्वायर। x डायरेक्शन क्या है OQ इक्वल टू ux 10√3 टाइम 2 सेकेंड, x क्या है बेटा माइनस, देख लेते हैं एक बार इस पेज पर, x आपका क्या है -5√3, -5√3 तो माइनस तो हमने ले लिया, 5√3 कितना है 2 सेकेंड 2 स्क्वायर 4, तो देखिए 2 2 जब 4 -10√3 और इधर क्या हो गया 20√3, OQ इक्वल टू 20√3 -10√3, बार और चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। देखिए ये 20√3 हो गया बेटा, दूसरे इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो 10√3, करेक्ट, ये क्या आ गया आपका 10√, OQ आ गया बेटा। तो फ्रॉम बेसिक डायग्राम ऑफ क्वेश्चन PQ इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बाय यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। PQ इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर आपका 10 था, 10 स्क्वायर 100, OQ क्या है 10√3, तो 100 इंटू 3 300, तो 400 स्क्वायर रूट ऑफ 420 मीटर। ओके बेटा, एक बार आप और एनालिसिस कर लें। ये देखिए हमने PQ फाइंड कर लिया, हमने हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ग्राउंड सरफेस H फाइंड कर लिया, कि आपने PO फाइंड कर लिया, PO से आपने नेगेटिव मींस अपोजिट टू द वाई डायरेक्शन, तो ये फाइनली मॉड फॉर्म में 10 मीटर हो जाएगा OP। ये वेलोसिटी फाइंड कर लिया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया, दैट्स क्लियर। ओके, थैंक यू।